Welcome to Sri Radha Vallabh Academy. So students, in previous topic we have studied about the microorganism friend and foe. Okay, in previous video I have told you that in this chapter what we have to studied means we have studied microorganism friend and foe. So we have already discussed about the microorganism and their types, means how many types are there and where do they live and what are their harmful and friendly aspects on us. Okay, so we have discussed a lot of ways, that in what ways they are helpful to us and in what ways they are harmful to us. Okay, so sometimes microorganism behave like a friend with us, and sometimes they will just behave like a foe. Okay, so in last video we have discussed already the means beneficial effect to us. That means in some of the process they are used as a beneficial way, like in making of curd and bread. Okay, and in the process of fermentation we are just going to discuss means after this. So in this video I'll tell you about the commercial uses of microorganism. ओके, कमर्शियल मीन्स लार्ज अमाउंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इंडस्ट्रियल वे में अगर हम यूज़ करें तो इंडस्ट्रियल वे में आपके एक प्रोसेस आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज़ करने के लिए। तो एक प्रोसेस है आपका फर्मेंटेशन। ठीक, तो एज यू ऑल नो दैट सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर alcohol from sugar or starch or wine from fruit juices by a process called fermentation। ठीक, तो fermentation आप यहाँ देखेंगे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो fermentation की प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअली, तो इसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज fermentation। ठीक, सो एज अ रिजल्ट ऑफ fermentation means what is obtained, so the alcohol is going to be obtained from sugar by fermentation with yeast। Okay, so actually yeast contains the enzyme zymase and invertase। So by the help of this, sugar means large organic molecule converted into the smaller one। Okay, just like that sugar in the presence of zymase enzyme convert into glucose and fructose, and this glucose in presence of invertase enzyme, ethyl alcohol and carbon dioxide will be produced। Okay, so this is the process of fermentation। Next we are going to discuss about the medicinal uses of microorganism। Okay, so as you all know that the antibiotic in industries are manufactured by the growing specific microorganism under controlled condition। Okay, so antibiotic are used in the treatment of infection in human as well as in animal। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक जो ऑलरेडी होते हैं वो क्या है, डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में दिए जाते हैं। ठीक, तो इसी वे में क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल वे में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। ये कुछ आपको एस्पेक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है कि कभी भी एंटीबायोटिक्स हम अपने मर्जी से नहीं लें, हम तभी लें जब हमारा डॉक्टर हमें एडवाइस करे। ठीक, सो डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड। द एंटीबायोटिक्स नॉट रिक्वायर्ड मे किल द बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल बैक्टीरिया। तो अननेसेसरी आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, फिर जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो पर्टिकुलरली उस एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट मीन्स आपका हम मतलब अपने आप को वो मीन्स ग्रो करने से नहीं रोक पाएगा। मीन्स अपने आप को क्या कर लेगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए वो क्या बना लेगा, एक मीन्स हम शील्ड प्रोटेक्ट कर लेगा, जिसके कारण क्या है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे उस मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अननेसेसरी हमें कोई दवाई नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन। तो ये एक अनदर वे है डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। तो दिस इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन इज़ डन बाय यूजिंग वैक्सीन। ठीक है, सो अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स नीडेड to immunize the body against a particular disease is called a vaccine। particular disease से हम अपनी बॉडी को बचाते हैं
तो उस बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डेड और वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण वो डेड और वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, वो हमारे लिए एक तरह से डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करेगा। ठीक, सो दिस इज़ कॉल्ड अ वैक्सीन। सो वैक्सीन शुड बी केप्ट स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। ओके, हमेशा हमें वैक्सीन को किस तरह से रखना चाहिए, लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस। ओके, सो नेक्स्ट विल जस्ट गो थ्रू द, and you all know that Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. Okay, so this is the scientist who discovered the vaccine for smallpox. Okay, so I hope you understood this topic, vaccine. Thank you so much. Okay students, so now I'll tell you about some of the following immunization schedule that should be recommended by the government, and इसको हमने बोला है वैक्सीनेशन देता है हमें गवर्नमेंट की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन। तो द प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ weakened or killed disease or causing microbe into an animal body to immunize it against the disease is called vaccination. तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस में होता क्या है, जब हमें कोई डिसीज़ होती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए हमें क्या है, डेड और वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऑलरेडी हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जो आगे चल के उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़। और यही एंटीबॉडीज़ हमें क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने बोला है वैक्सीनेशन। ठीक, सो द वैक्सीनेशन, कुछ मैं आपको वैक्सीन बता देती हूँ जो हमें जनरली दी जाती हैं। जैसे कि हम बात करें BCG और स्मॉल पॉक्स की, ये जब जैसे ही पर्टिकुलर चिल्ड्रन का बर्थ होता है तो उसके बाद हमें ये वैक्सीनेशन तुरंत दी जाती है। ठीक, जैसे 4 से 9 मंथ के बीच में हमें DPT दिया जाता है। ठीक, और पोलियो ओरल 3 डोजेज एट एन इंटरवल 4 to 6 वीक्स। ठीक, 1 साल पे हमें स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन दिया जाता है। 1.5 से 2 साल के बीच में DPT और पोलियो बूस्टर दिए जाते हैं। 3 से 4 साल के बीच में हमें स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन दिया जाता है, और 5 से 6 साल के बीच में दोबारा से हमें DPT टाइफाइड वैक्सीन के 2 डोजेस हमें दिए जाते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ बताया था वैक्सीनेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक, तो कुछ आपके जैसे कि कुछ आपके बैक्टीरियाज़ होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, हमारे मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इन्हीं माइक्रोब्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक, तो जिसमें कि अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स अप द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो जनरली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, और जिस वजह से हमारे क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो एज अ रिजल्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी environment. Okay, so next we will talk about the cleansing the environment. So as you all know that many microorganisms decompose the dead organic waste of plants and animal into simpler and harmless substances. Such simpler substances get into the soil and used by the other plants. Thus microorganism act as the cleansing agent of the nature. ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कुछ डेड एनिमल्स हुए, डेड प्लांट्स हुए, तो जो ऑलरेडी क्या है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उनका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में। तो यही कौन करता है, यही आपके करते हैं बैक्टीरियाज, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहे हैं, फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक, जैसे कि अगर आप बात देखें, एनारोबिक बैक्टीरिया है डिग्रेड द एनिमल डंग इनटू बायोगैस एंड द लेफ्ट ओवर स्लरी कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर।
जैसे हम बात करें एनारोबिक जब फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरियाज का, किसमें, एनिमल ड्रग में, तो जिसके रिजल्टेंट क्या है, बायोगैस जनरेट होती है, और जो स्लरी बच जाता है, जो लिक्विड पार्ट बच जाता है, वो धीरे धीरे क्या और फर्मेंट होके मैन्योर के जैसे हम उसको एक्ट कर सकते हैं, ठीक। सो देयर आर सम क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ठीक। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So as you all know that many microorganisms are harmful to human beings, plants and animals, and such microorganisms may causes disease in human, plants and animals. Next they will spoil the food also, clothing and leather also. Okay, so one by one we are going to discuss about the harmful effects of the microorganism. So before that I would like to tell you the term what do you mean by pathogen. ओके कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊँगी. पैथोजन, तो एक्चुअली जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से हमें कई सारी डिजीज़ होती हैं, ठीक. वायरस की वजह से हमें कई सारी डिजीज़ होती है. नाउ डेज इट इज़ ऑलरेडी डन कोरोना वायरस, ठीक. ये भी किसकी वजह से, वायरस की वजह से, ठीक. प्रोटोजोआ की वजह से, फंजाई की वजह से, तो बहुत सारी डिजीज़ हमें होती हैं. पैथोजन्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, पैथोजन्स, ठीक. तो जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ आपको लिस्ट मैं बताती हूँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया, ये आपका क्या कॉज करता है, निमोनिया, टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और डिप्थीरिया. नेक्स्ट हम फंजाई की बात करें तो ये स्किन डिजीज़ हमें करते हैं. जनरली फूड पॉइजनिंग भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है. नेक्स्ट प्रोटोजोआ हमें मलेरिया, काला अज़र, अमेबिक डिसेंट्री एंड जियार्डियासिस, ठीक. वायरस की वजह से हमें क्या, पोलियोमाइलिटिस होता है. पोलियो जनरली चिकन पॉक्स, ल्यूकेमिया, एड्स, मीजल्स, कंजक्टिवाइटिस, रैबीज, डेंगू, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So next we'll talk about the disease causing microorganism that I already told you, and next we'll talk about the disease caused by microorganism and viruses. So disease caused by microorganisms such as bacteria, fungi, viruses and protozoa are communicable or infectious diseases. Okay, so I would like to tell you what do you mean by communicable diseases. तो communicable means हमें कह सकते हैं which can get transmitted from one person to another person by direct or indirect contact, ठीक. जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो बीमारी फैल जाती है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. तो इनके मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के, तो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन होते हैं दो तरह के होते हैं. एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. डायरेक्ट ट्रांसमिशन में की अगर हम बात करें तो ये होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, मीन्स आप एक दूसरे से छू के इस बीमारी को ले सकते हैं, ठीक. जैसे कि आजकल कोरोना वायरस, किसी के भी इन्फेक्शन में आ जाओ तो उसको कोरोना वायरस हो जाता है, कोविड-19, ठीक. बाय ड्रॉपलेट, खांसने छींकने से, ठीक. बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज. एक डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने पर्टिकुलर पर्सन को क्या था, मीन्स कोई भी आप बीमारी ले लो, कोई एड्स था, वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति को लगा दिया तो उसको भी क्या हो गया, वो पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाएगी, ठीक. तो देयर आर सम डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड. नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, झूठा खाना खाने से, झूठा पानी पीने से, ठीक. थ्रू एनी कैरियर, कोई भी कैरियर जैसे कि मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रेड फ्लाई एट्सेट्रा, ठीक. थ्रू क्लॉथ्स, टॉवल, एक दूसरे की सारी चीज़ें इस्तेमाल करके, टॉवल, हैंकी, पर्सनल यूटेंसिल, ठीक है. ये सारी चीज़ें अगर हम शेयर करते हैं तो उससे भी हो सकता है. डर्टी हैंड्स, एक दूसरे से हाथ मिला लिए, अनवॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लिए, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इन कम डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक. सो दीज आर द सम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड. नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं, कुछ आपके इंसेक्ट्स भी होते हैं जो जनरली इंसेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, ठीक. सो यही इंसेक्ट्स और एनिमल्स ये किसकी तरह से एक्ट करेंगे, कैरियर के जैसे एक्ट करेंगे. इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर, ठीक. कैरियर मीन्स व्हाट, क्या, जो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके आते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर फूड आइटम पे रख सकते हैं या मतलब हमारे हाथों पे छू लिया, वही हाथ अपने अपने मुंह में लगा लिए, तो उससे भी क्या होगा, हम पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर डिजीज़ से अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल अबाउट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. तो यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर कॉमन टेबल दी गई है जिसमें आपको ह्यूमन डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, तो
तो मैंने आपको बताया है टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें दिया हुआ है एयर, प्रिवेंटिव मेजर इसमें दिए हुए हैं। मीजल्स वायरस के अकॉर्डिंग, चिकन पॉक्स ये भी वायरस के द्वारा होती है, पोलियो ये भी वायरस के द्वारा, कॉलेरा बैक्टीरिया के द्वारा, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, और मलेरिया भी, मलेरिया किसके थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, ठीक। इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिए हुए हैं, प्रिवेंटिव मेजर भी दिए हुए हैं, किस तरह से आप इन सब बीमारियों से बच सकते हो, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल अबाउट द disease causing microorganism. Thank you so much.